Today we will start chapter 3rd, shares and dividends. From ML Agarwal for class 10th for ICSE. This is the lecture number 3rd of this chapter for session 2025-26. From question number 15, first 14 sums we have already done in previous lectures. Question number 15. Ajay owns 560 shares of a company. अजय के पास क्या है 560 shares हैं. The face value of each share is 25. The company declared a dividend of 9%. Calculate a dividend that Ajay will get. The rate of interest on his investment if Ajay has paid ₹30 for each share. यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स. तो मन्नत नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है that are 560. Face value means nominal value. Nominal value. That is ₹25. The company declared a dividend percentage is 9%. And the market value second part में हमें given है that is ₹30. मतलब 30 में उसने परचेज किया था. पहला पार्ट dividend that Ajay will get. Dividend received. Yes, Mannat. Dividend percent into nominal value into number of shares. Number of shares into rate of dividend, that is 9%, 9 by 100 into nominal value, that is 25. 25 4s are 4 is cut here 140. 0 9 4s are 36, 3 9 3 12. This is our answer. First part answer. Second part answer, rate of interest on his investment. Return percentage or rate of interest, that is the same thing. Okay. Rate of interest on his investment if Ajay has paid 30 for each. तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखा है हम भी वैसे लिखेंगे. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस, व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न परसेंटेज. मन्नत तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना. नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न परसेंटेज इज द सेम थिंग. जैसे मन्नत मोटो एक बात है ना, वैसे ही. तो सर इसका फॉर्मूला तो होता है ना डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. डिविडेंड हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 1260 इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए अपॉन मनी इन्वेस्टेड. हाउ वी कैन फाइंड द मनी इन्वेस्टेड. सर उसने बोला है ना 30 ईच, तो 30 ईच में इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे. वेरी गुड. तो वाकई सियानी हो गई. बिल्कुल सही बच्चे. 420 56 कट होता है. 7 के टेबल पे कट कर दो पहले. 7 6 60, 7 8 जा. यहाँ पे 4 के टेबल पे 2 15, 15 by 2 और वी कैन से 7.5% और 7.5% पर एनम इज द आंसर. समझ आया बच्चे, लग गया पता. यस सर. नाउ परिधि यस सर. बीमार है. नो सर. हैं नहीं सर. पक्का. यस सर. चलो फिर बताइए. क्वेश्चन नंबर 16.
A company with 10,000 shares of nominal value 100 declare an annual dividend of 8% to the shareholders. कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स थे. कितने शेयर्स थे कंपनी के? 10,000. 10,000. नॉमिनल वैल्यू 100 है. 8% डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया फॉर द शेयर होल्डर्स. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है. उसके बाद रमेश bought 90 शेयर ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर. Calculate the dividend he received and percentage return on the investment. सबसे पहले total number of shares of a company. Total number of shares of the company 10,000. are 10,000. Nominal value 100. And rate of dividend declared by the company 8%. First part, calculate total amount of dividend. Total amount of dividend. So number of share into dividend rate into nominal value. So 10,000. 10,000 8 upon into 100 into 100. वेरी गुड. मतलब कंपनी ने ₹80,000 डिविडेंड डिक्लेयर किया. ठीक है, पहले पार्ट का आंसर. रमेश बॉट 90 शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय रमेश 90. कितने में? मार्केट वैल्यू उसका गिवन है, दैट इज ₹150. कैलकुलेट डिविडेंड रिसीव. यहाँ पे डिविडेंड रिसीव बाय रमेश So 90 into 100 into 8 upon 100. 90 number of shares, rate of dividend 8 by 100 into nominal value, that is 100. 9 8s are 72. 720 is his dividend received. Third part, मतलब second में बोला उन्होंने, also find a percentage return on investment. सर पहले हम लोग मनी इन्वेस्टेड निकालेंगे. वो यहीं पे सीधा निकाल देंगे ना, यस सर. जैसे मन्नत ने करवाया था. सर 720 हाँ, into upon 100. 20. हाँ 90 into 150. 150. इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा. Yes sir. 98 are 3 to 16 upon 3%. That is 5 1 upon 3% is the return. आया समझ? Yes sir. Now, Parneet Yes, sir. will reach on question number 17. A company with 500 shares of nominal value 120. कंपनी के पास 500 शेयर्स हैं जिसका नॉमिनल वैल्यू 120 है. डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%. द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी सेम एज लाइक 16 सम. एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा होल्ड 80 शेयर ऑफ द कंपनी. इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. यस, फर्स्ट पार्ट तो सेम है. प्रॉब्लम कहां आ गई? सेकंड पार्ट में. तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आर 500. नॉमिनल वैल्यू ₹120. डिक्लेयर डिविडेंड 15%. टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड. यस परनीत, बताइए. Sir, number of shares into nominal value into dividend percent. 15/100 मतलब सब में वही सेम चीज चल रही है. Yes, sir. हाँ, करंट नहीं है किसी में भी. परिधि भी आराम से सुस्त हो जैसे. 180. 50 18 5s are 90. ₹900. 900 ही आएगा ना? नहीं, 9,000 9,000. तेरे बोलने से पहले ही लिख दिया मैंने.
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। नाउ अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में दे हैव आस्क्ड मिस्टर शर्मा होल्ड 80 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर शर्मा होल्ड। एटी, रिटर्न परसेंटेज गिवन है, that is 10%. How we can find the market value? हाँ जी, सर पहले हम रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर मार्केट वैल्यू पता लग जाएगी। फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू कर देंगे, नंबर चलो ऑफ शेयर। यहां पे ठीक है, मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको समझाता हूं, न्यू फॉर्मूला। जो चलो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ परनीत, जो डिविडेंड है वो किस चीज पे निकलता है? नॉमिनल सर वैल्यू पे ना। यस सर, और जो रिटर्न परसेंटेज है वो किस पे निकलती है? वो मार्केट। मार्केट वैल्यू। ओके, मतलब जिस रेट में हमने परचेज किया है इस पे यस निकलती है ना। तो यस एक सर, शेयर के लिए मुझे डिविडेंड बताओ क्या होगा? एक शेयर के लिए हाँ, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। यस सर। ये चीज मैंने क्या निकाली है देखो, व्हाट आई हैव फाइंड, दिस इज द डिविडेंड इंटू वन कर देंगे तो एक शेयर पे डिविडेंड हो गया ना वो, यस दैट सर। इज डिविडेंड रिसीव ऑन वन शेयर। अब परसेंटेज रिटर्न ऑन वन शेयर। सर ये समझ में नहीं आया अभी जो आपने लिखा है। चलो अब ये क्या है, व्हाट इज दिस जो मैंने बॉक्स में किया है? दैट इज द इनकम फ्रॉम वन शेयर। यस सर। व्हाट इज दिस? रिटर्न। दिस इज आल्सो द इनकम फ्रॉम वन शेयर। देखो सर कैसे? जो डिविडेंड होता है दैट इज द इनकम ना। डिविडेंड परसेंट और इनकम परसेंट डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, बट इनकम और डिविडेंड इज द सेम थिंग। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी बट उनकी परसेंटेज डिफरेंट होगी। अंडरस्टूड? मेरी बात यस समझ में आई? जो इनकम यस होती है देखो, यहाँ पे हम रिटर्न परसेंटेज निकालते हैं। रिटर्न परसेंटेज क्या होती है? डिविडेंड इनटू मार्केट, मतलब मनी इन्वेस्टेड नीचे करते हैं इंटू 100 करते हैं, और परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज का परसेंटेज हटाना हो तो नीचे 100 लग जाएगा ना। यस सर। यहाँ पे भी वैसे ही। अब रिटर्न 10% गिवन है तो 10/100, मार्केट वैल्यू वी हैव टू फाइंड, डिविडेंड परसेंट 15, नॉमिनल वैल्यू 120 अपॉन 100, 100 से 100 कट हो गया तो मार्केट वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 15 इंटू 120 अपॉन 10, 15 इंटू 12 रुपी 180। दिस इज द मार्केट वैल्यू। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वन, रोहिन। मतलब एक चीज और देखो, जो 80 शेयर्स दिए थे उसका कहीं यूज ही नहीं किया हमने। किया यूज? नहीं किया। ठीक है,
हमारे पास सीधा ही मार्केट वैल्यू आ गई। हाँ जी, रोहिन। यस सर। By investing rupees 7,500 in a company, paying 10% dividend, and income of rupee 500 is received, what price is paid for each rupee 100 share? Money invested 7,500, यस सर। rate of dividend, 10%। and income of 500 is received. What is 500? सर इनकम। That is, income means, डिविडेंड। dividend received. What price is paid? What we have to find? सर मार्केट वैल्यू। Rupee 100 is, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। 18 sum. By investing 7,500, सबसे पहले money invested, that is rupee 7,500. 10 नहीं, यही कर रहे थे ना, हाँ। Paying 10% dividend, dividend percentage is 10%, and income dividend received is rupee 500. Nominal value is rupee 100. What price? Market value we have to find. How we can find? Yes, बताइए रोहिन. What we can do? बोलिए सर बोलिए जल्दी से. सर इनकम डिविडेंड इनकम परसेंट से निकाल सकते हैं। इनकम परसेंट तो है ही नहीं हमारे पास. हाँ। हमने मार्केट वैल्यू फाइंड करना है बेटा. अगेन डिविडेंड रिसीव्ड 500. फॉर्मूला डिविडेंड रिसीव का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. बोलो. इनटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 100. 500 zeros are cancelled. Number of shares are 500 upon 10. तो number of shares are 50. कितने? 50 shares. अब फाइन क्या करना था? मार्केट वैल्यू. मनी इन्वेस्टेड है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी? मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ 150. तो ₹150 इज द मार्केट वैल्यू. अंडरस्टूड? यस सर। समझ आया बच्चे? ये इजी था. यस सर। Now we'll reach on question number 90. हाँ जी साहिब. कहाँ गया साहिब? गायब है. साहिब जोत. साहिब जोत. इसको क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहा ये? इसका माइक नहीं ऑन हो रहा. चलो शरारती लड़की आजा. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 19. A man buy 410 rupee shares. What is 400? Number of shares. तो शरारती लड़की है. 10 rupee shares. What is 10 rupee? क्या? Value. Nominal value. At a premium of 2.50 rupee to 1 on each share. If the rate market value is 2.50 तो हो जाएगा 12.50. आज वॉइस क्लियर नहीं आ रहा तेरा. हेलो. हाँ अब ठीक है.
मैं बोल रही हूँ कि प्रीमियम 2.50 है तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 2.50 तो 12.50 रुपीज। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, डिविडेंड रिसीव्ड, यील्ड और परसेंटेज रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज, दैट इज द सेम थिंग। फिर मन्नत डिविडेंड बोल दिया, मोटो बोल दिया, दैट इज द सेम थिंग ना। वैसे ही यील्ड और रिटर्न परसेंटेज इज द सेम थिंग। ओके, आज तो प्रीति लड़की आई है ना घर वालों से, नो लग रहा सर। है मुझे, पक्का लग रहा है, पूरी टेंशन में है। दीदी के साथ लड़ाई हुई है? नो सर। किसके साथ हुई है बता दे। सर किसी के साथ नहीं हुई है। किसी के साथ नहीं हुई। चलो फिर डिविडेंड परसेंट गिवन है 8%। फिर इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो चलो नंबर करते हैं, 1 मिनट रुक जा। ही मैन बाय 400, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर 400, 10 रुपी शेयर, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू, रुपी 10। Market value become 10 plus premium. Premium is 2.5. We get rupee 12.50. If the rate of dividend percentage is given, that is 8%. Pehla part, investment. How we can find the investment? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। फिर आ जाएगा 400. 12.50 तो 5000। पक्का? हाँ, विश्वास रखिए सर। चलो second, dividend received. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। Number of shares 400 into rate of dividend 8 by 100 into nominal value 10. Two zeros are cancelled. 8 for the 32, 320. अब देखो yield डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। into 100 upon money investment. हाँ, 20 इंटू 100 बाय 5000। 0 0। 6.4%. तो फ्रैक्शन में सर भी यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब रिटर्न रिटर्न। परसेंटेज अभी तो बताया था, तो सो गया था सर मैंने नहीं सुना। जब मैंने बोला था मन्नत बोल दो मोटो बोल दो, एक ही बात है। यील्ड और रिटर्न परसेंटेज दैट इज द सेम थिंग। ओके। सर फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चे। 6 to 5% आई गेस। नाउ अगेन पतली सी लड़की मन्नत, ठीक है। चलो ये मुझे करवाना पड़ेगा, छोड़ो। मन्नत मन्नत से नेक्स्ट आगे पूछेंगे। ये डिफरेंट सा सम है, तभी मैंने सर्कल लगा रखी है। ए मैन इन्वेस्ट 10,400 in 6% share at 104 and 11,440 in 10.4% share at 143. How much income would he get in all? ओवरऑल इनकम उसको कितना होगा? A man invests rupee 10,000 in 6% share at 104 and 11,440 in 10.4 shares at 143. How सर much income? हाँ जी, सर जो भी आपने सबसे स्टार्टिंग में कराया था कि दोनों की इनकम फाइंड करके प्लस करना, वही तो नहीं होगा इसमें? प्रॉब्लम ये है हमें नॉमिनल वैल्यू नहीं दी। सर हम उधर 100 या फिर एक्स कुछ लगा सकते यस सर, मेरी 100 बुक में ऐसे लिखा है assume it to be 100। हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा है। वाई? सर बस लिखा है ब्रैकेट में। तुम्हारी न्यू बुक में? हाँ सर। चलो मेरे पास पुरानी है ना। इसमें भी 100। मेरे पिक्चर भेज, फोटो खींच के भेज, अभी भेज सकती है? ओके सर।
सर भेज दिया। अच्छा, तूने भेज दिया। ओके, 100 फेस वैल्यू, दैट इज नॉमिनल वैल्यू। फिर तो इजी है ये, फिर तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। A man invest 10,400 in 6% share at this is the market value, nominal value is 100. Same here, this is the market value and this is the nominal value. You can find it easily. फिर तो करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। सर बस लास्ट में जाके दोनों की इनकम का सम होगा ना? हाँ जी, ओके सर। जो डिविडेंड यहाँ से रिसीव होगा और जो डिविडेंड यहाँ से रिसीव होगा उसका सम। पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे, 10,400 को 104 से डिवाइड करके, 11,440 को 143 से। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, यू कैन फाइंड इट इजीली। नेक्स्ट सम, टू कंपनी हैव शेयर्स ऑफ 7% एट रुपी दिस एंड 9%। इसमें भी 100 लिखा है फेस वैल्यू। हाँ यस सर। सर। ये सेम है दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। बट यहां मनी इन्वेस्टेड नहीं दिया, यहां सिर्फ एक शेयर का मार्केट वैल्यू दिया है, एक शेयर का मार्केट वैल्यू दिया है, इन विच शेयर्स वुड हैव मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये सम देख लो। क्वेश्चन नंबर 21, two type of shares are there, that's why I have drawn a line. Two company have a share 7% dividend, dividend is 7% and second one is 9%, dividend percent is 9%. At 160, here the market value is rupee 116 and here the market value is rupee 145. Nominal value is same, here is 100 and here is also 100. Then how we can find the percentage return? Profit matlab percentage return, not dividend only. Let here be return percentage be X%. Let here return percentage be Y%. तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो बॉक्स में बंद करके, वो वाला रिटर्न परसेंटेज अपॉन 100 इंटू द मार्केट वैल्यू is equal to rate of dividend 7%, 7 by 100 into the nominal value. Same here, Y% is the return, percentage हटाया नीचे 100 into market value is equal to rate of dividend 9 upon 100 into the nominal value. 100 से 100 काट दो, मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 116, तो 7 into 100 upon 116। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 into 100 upon 145। परसेंटेज 4 के टेबल पे कट कर दो, 4 to the 8 9 25 27 5 7 175 upon 29%। यहाँ पे बच्चे 5 के टेबल पे कट कर दो, 2 9 20 29 180 upon 29%। देखो डिनोमिनेटर आर सेम, तो विच परसेंटेज इज बिगर, जहां न्यूमिनेटर बिगर है। तो हाउ मच क्या लिखा है इन्होंने, विच इन विच ऑफ द शेयर्स वुड बी इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, इन द सेकंड इन्वेस्टमेंट इट इज मोर प्रॉफिटेबल। ये चीज समझ आई क्या किया मैंने। यस सर। तो यहां हमें नंबर ऑफ शेयर्स का जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला से, बिकॉज दिस इज आल्सो इनकम इन रुपीज, दिस इज आल्सो इनकम इन रुपीज। मैं फिर से वही फॉर्मूला दिखा देता हूं। रिटर्न परसेंटेज गिवन है, मान लो उसको हमने मनी में चेंज करना है, डिवाइड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू करेंगे। दिस इज द इनकम ऑन वन शेयर, दिस इज आल्सो द इनकम ऑन वन शेयर, इनकम तो इक्वल ही रहेगा। हाँ,
जो उनकी परसेंटेज है डिविडेंड परसेंट और रिटर्न परसेंटेज वो डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि डिविडेंड परसेंट ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू एंड रिटर्न परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन मार्केट वैल्यू। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? हाँ यस सर। यस सर। एक बात बोलो, हाँ जी। तो इधर बाई हंड्रेड है तो हंड्रेड हंड्रेड कैंसिल ही हो जाता है, तो रेट ऑफ जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे कैलकुलेट कर। ठीक है, तू कह रही है 5+2 7 होता है, मैं कहता हूँ नहीं जी 4+3 होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ नहीं। बस वैसे कटिंग अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, मन्नत, सेम है ये क्या? यस क्वेश्चन नंबर 22, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? 6% 100 शेयर्स, रुपी 100 शेयर एट 120, डिविडेंड परसेंट गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू। मार्केट सेकंड वैल्यू। बी से डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। जो हमने यहाँ पे किया था वही करना है। और सॉरी इसमें नहीं, कौन सा किया था? हाँ हाँ यही किया सर, था, इसी में यही क्या था। आता? कर लोगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 22? यू कैन डू इट इजीली। यस यस सर। साहिब जोत, साहिब, क्या हुआ है इसको? क्या आवाज नहीं सुनाई दे रही उसको? चलो देख ही रहा है। सर। हाँ सर जो 21 वाले में, तो हाँ सर जी। लेकिन इन्वेस्टमेंट बताना है ना कि किस में अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फिर नहीं सर बच्चे, रिटर्न इन्वेस्ट परसेंट। मोर प्रॉफिट तो रिटर्न परसेंटेज ही निकाला है हमने, एक्स की वैल्यू निकाली ना। इन्वेस्टमेंट नहीं फाइंड होगा कभी भी यहाँ इस टाइप के सम में। इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड कर लोगी? ना नंबर ऑफ शेयर्स है ना कुछ और गिवन है। ठीक है, सर आप मुझे तो नहीं कह रहे साहिब जोत? अभिजोत है, सॉरी साहिब जोत मैं क्यों बोल रहा हूँ? यार नाम ही चेंज कर दिया मैंने तो। ओहो मैं ये बोल क्यों नहीं रहा? चुपचाप बैठा है। चल अभिजोत। मेरे दिमाग में साहिब जोत क्यों आ गया? A man invests rupee 10,080 in 6% 100 rupee share at 112. Abhijot, what is 10,080? अभिजोत, अभी तो मैंने अभिजोत ही बोला है, साहिब जोत तो नहीं बोला। ये फिर शांत। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी मन्नत, what is 10,080? इन्वेस्टमेंट, 6% डिविडेंड परसेंट, 100 rupee नॉमिनल वैल्यू, 112. मार्केट वैल्यू, Find his annual income. What is annual income? Means डिविडेंड इन रुपीस। received. हाँ, dividend in rupees. When the shares fall to 96, he sell out the shares and then invests the proceeds in 10% 10 rupee share at 8. Find the change in his annual income. तो उसकी इनकम में कितना चेंज हुआ? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23, a man invests rupee 10,080, money invested rupee 10,080 in 6%. Dividend percentage is 6%. Rupee 100 shares, nominal value is rupee 100 and the market value is given rupee 112. Find his annual income. सबसे पहले number of shares find करो। हेलो हाँ जी, सर, मेरा डाटा कट गया था, मीटिंग ऑफ डाटा हो गई थी अपने आप ही। उसको सिल ले ना, कट गया था, मशीन लगा ले।
सर ये देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऑफ बट हो गया था डाटा। चल कोई बात नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स, मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, कट करके कितना आएगा जल्दी से बोलो, बी फास्ट। सर 90। पूरा पूरा 90। यस सर। नंबर ऑफ शेयर बॉट 90। तो यहाँ पे मन्नत, डिविडेंड या एनुअल इनकम? यस सर। बताइए। सर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। 9 6 54 रुपी 540 इज हिज एनुअल इनकम। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा। उसके बाद उन्होंने बोला है व्हेन द शेयर फॉल टू 96 he sell out the shares। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स 112। क्या हुआ तेरे को? 112। व्हेन शेयर्स फॉल टू 96, उन्होंने बोला है कि जब शेयर का प्राइस 96 हो जाता है तो वो सेल कर देता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स क्या आ जाएगा? सर उसने तो ये बोला है ना, जब 96 रुपीज कम हो जाते हैं। 96 कम नहीं हो जाते, कहते जब उसकी वैल्यू 96 रह जाती है। 96 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। उसने खुद 100 का मतलब 112 का परचेज किया था। सर 96 तो मार्केट वैल्यू हो गई। हाँ फिर क्या हो गया बच्चे? दो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से। इतना मनी इन्वेस्ट किया एक शेयर में जिसका वैल्यू था 112, ठीक है, ये हो गया बेटा। नंबर ऑफ शेयर उसने परचेज किए 90। अब उन्होंने लिखा है व्हेन द शेयर वैल्यू फॉल टू 96, जब उसकी शेयर की वैल्यू 112 से कम होकर 96 रह गई, एट दैट टाइम ही सेल्स द शेयर्स। शेयर्स कितने थे? 90 थे ना, इंटू 90 होगा। समझ गए? यस सर। 9 6 54, 5 81 सर 5। हाँ जी बेटा। नहीं सर, मैं बोलूंगी 8640 वो भी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? ही सेल्स आउट द शेयर एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन। इतनी मनी उसको रिसीव हुई एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10%। नाउ ये सेल प्रोसीड वाला सम है, मतलब एक शेयर को सेल करके दूसरे शेयर से जो मनी रिसीव हुई है उसको आगे उसने इन्वेस्ट किया। सेल प्रोसीड्स इन 10%, डिविडेंड परसेंटेज इज नाउ dividend percent on sale proceed is 10%. 10 rupee share, nominal value is given rupee 10. At rupee 8 market value, that is the cost price now, rupee 8। ठीक है, ये चीज देखो, पहले उसने इतना मनी इन्वेस्ट किया था, डिविडेंड को निकाल दो, इनकम को बीच में से छोड़ दो, 90 शेयर रिसीव हुए। उसके बाद उसने 96 शेयर 90 शेयर्स 96 रुपी पर शेयर के सेल हिसाब से सेल कर दिए। 8640 आ गया। नाउ डिविडेंड परसेंटेज इज 10%, नॉमिनल वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 8। जो नई कंपनी के शेयर परचेज किए उसका डाटा गिवन है हमें। उसने कौन से शेयर परचेज किए? जो 10% डिविडेंड पे कर रहे थे, नॉमिनल वैल्यू 10 थी और 8 रुपी में उसने परचेज किए थे। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे मन्नत? हाउ मेनी शेयर्स? सर 8640 डिवाइडेड बाय 8। यस, क्योंकि इतनी मनी बची थी ना उसके पास, ए 180 शेयर्स। सर 1080। 080 आएगा। यस, फंसी नहीं जाल में मछली। बच गई। वेरी गुड। नंबर ऑफ शेयर्स 1080। व्हाट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द चेंज इन एनुअल इनकम। यहां पे एनुअल इनकम क्या होगी अभी? डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू।
Number of share, dividend 10%, 10 by 100 into nominal value 10, 0000, rupee 1080. तो change in annual income, सर जो पहले एनुअल इनकम थी -1080। पहले एनुअल इनकम कम थी, यस सर। अब ज्यादा आ गई, तो हाँ। ज्यादा वाली पहले आएगी, यस सर। 540 ही आंसर आ जाएगा। मतलब चेंज इन एनुअल इनकम इंक्रीज बाय, यहाँ पे एनुअल इनकम इंक्रीज बाय रुपी 540। ओके, सर हाँ सर ये नंबर ऑफ शेयर्स कैसा है? देखो, शेयर सेल किए इतने में, तो यस अपने पे सर। लगा के चल, तेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। यस सर। जिस कंपनी के शेयर खरीदे वो ये रहा, डिविडेंड वो 6% दे रहा था, नॉमिनल वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू 100, मतलब तूने 112 में परचेज किया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गई? 90। 90 परचेज कर लिए तूने। डिविडेंड परसेंट 6% था, डिविडेंड एनुअल इनकम निकाल ली हमने यस सर। फॉर्मूला से। अब कहते सेल सर कर दिया तूने। हाँ जी, सर मुझे 5 मिनट चाहिए बस। किस वो लिए? हमारी दूसरी संध्या की क्लास लगती है तो उसमें पाठ करना होता है, तो मेरी टर्न आज पहले आ गई है। जाओ जाओ जाओ। नहीं तो 8। यस सर। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स, एक शेयर 96 का है बेटा, सेल यस किया उसने, कितने शेयर थे तुम्हारे पास? 90 थे ना, 90। तो कितने पैसे आ जाएंगे तेरे पास सेल करके? इतने आ जाएंगे ना। यस सर। अब डिविडेंड परसेंट 10% है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपी है, मार्केट वैल्यू 8 रुपी है, जिस कंपनी के दूसरी कंपनी के तूने शेयर परचेज किए। यस सर। अब इस मनी से ही परचेज करेगा ना, यस सर। 8640 अपॉन 8, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास। अब एनुअल इनकम जो दूसरी इन्वेस्टमेंट तूने की थी वहां से 10% था ना, यस सर। नंबर ऑफ शेयर इंटू 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, ये इनकम आ गई तुम्हारी सेकंड टाइप ऑफ शेयर से। ओके, यस सर। मतलब सम बहुत पड़ेगा ना। ट्वेंटी थर्ड, 24th, जल्दी तो नहीं है किसी को जाने की अभी जॉब को छोड़ के? कोई भी नहीं बोला। नो सर। नो सर। ये तू क्या उठा के रखती है संभवी? सर स्पीकर ऐसे इधर नहीं रखते हो तो सुनाई नहीं देता वॉइस। क्यों? पता नहीं सर, ऐसे मतलब ये वाला लैपटॉप मेरे पापा का लैपटॉप है, इधर बहुत कम मतलब ये क्या बोलते हैं, स्पीकर बहुत कम आता है, तो इसलिए ये वाला स्पीकर लेना पड़ता है। अभी ये पूरा मुंह के सामने नहीं रखूं तो आवाज ही नहीं आती। ऐसे ना मेरी तरह हेडफोन ले ले एक, सर ठीक है। वो बेटर रहेगा। ओके, ठीक वो तो लग जाएगा लैपटॉप में, कि वो भी नहीं है स्पेस? है। है सर। है। 24th, यस परिधि। यस सर। आज मान ना मान तेरी है तो है, कोई प्रॉब्लम, लड़ाई तो की है तूने, है परिधि? नहीं सर, और थोड़ी नहीं तबीयत सर। नहीं सही है। हाँ, अब बोलिए तबीयत नहीं सही, क्या हो गया तेरी तबीयत को? सर थोड़ा सा फीवर सा है। फीवर को साइड पे रख दे। सर तभी क्लास अटेंड किए। अच्छा, तो ये भी अच्छा है, घर बैठे क्लास अटेंड करते हो। Sachin invests rupee 8500 in 10% 100 rupee shares at 170. What is 8500? मनी इन्वेस्टेड। 10% डिविडेंड रेट। 100 rupee, नॉमिनल वैल्यू। 170। मार्केट वैल्यू। हाँ, सचिन ने इन्वेस्ट किए 8500 रुपीज, 10% जो डिविडेंड पे कर रही थी, 100 रुपी नॉमिनल वैल्यू है, 170 उसका मार्केट वैल्यू है।
He sells the shares when the price of each share rise by 30. जब 30 रुपी राइज हो गया प्राइस, he invest the proceed in 12% this share, find the sale proceed. सेल प्रोसीड का मतलब सेल करने पे उसको कितना मिला. द नंबर ऑफ रुपी 125 शेयर्स ही बाय, उसने कितने बाय किए. द चेंज इन इज एनुअल इनकम, सेम उसी टाइप का ही है जो हमने 23rd किया है. तो यहां पे पहले मनी इन्वेस्टेड रुपी 8500. In 10%, dividend percentage is 10%. Rupee 100 shares, nominal value is rupee 100 at 170. Market value is 170. सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम? नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स. हाँ जी, किसके इक्वल? इन्वेस्टेड मनी अपॉन एमवी ऑफ वन शेयर, तो 8500 अपॉन 170. 50 shares received. 50 shares ना कट किया, 17 5 85 होता है, एक जीरो कट गई, Yes, 50 sir. आ गया. एनुअल इनकम यहाँ पे निकाल ही लो, उसके बाद करेंगे सेलिंग वगैरह का काम. एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, Number of share into dividend percent into nominal value. number of shares are 50, dividend is 10%, 10 by 100 into the nominal value is also 100. Rupee 500 is his annual dividend. Now sale proceeds, मतलब उसने जब सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ये लिख देता हूं. जब प्राइस कितना इंक्रीज हो गया 30 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या आ जाएगा? तो 30 रुपी. हाँ जी, 30 रुपी. नहीं बेटा, इंक्रीज, राइज. तो सर 200. 200, एक सेकेंड. हाँ, 200. 170 में उसने परचेज किया था, उन्होंने बोला है राइज. जब 30 रुपी राइज हो गया तो रुपी 200 आ गया एक शेयर का सेलिंग प्राइस. यस सर. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके पास? 50. तो सेल प्रोसीड्स, 200. पहला पार्ट सेल प्रोसीड्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 200, दैट इज रुपी 10,000. ये सेल प्रोसीड है. मतलब सेल करके उसके पास 10,000 रुपीज आए. नंबर ऑफ 125 शेयर्स इज परचेज्ड. नाउ सेकंड जो इन्वेस्टमेंट की उसने, उसका डिविडेंड परसेंट कितना था? सर हाँ जी, सेल प्रोसीड मतलब क्या होगा? सेल प्रोसीड का मतलब सेल करके तुम्हारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड्स. सर हाँ जी, ये क्या एक टाइप ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, ये पेन है. आपने परचेज कर लिया, कितने का? मान लो 40 का परचेज किया, आपकी फ्रेंड को बहुत पसंद आ गया ये, तो उसने बोला मुझे दे दो. आपने भी स्कीम लगा ली, आपने 40 का परचेज किया था, 50 का सेल कर दिया, तो दैट इज सेल प्रोसीड्स. अच्छा ठीक है सर, ठीक है. सेल करने पे जितना मनी आपके पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेल प्रोसीड. ओके सर. तो आगे उसी सेल प्रोसीड को इन्वेस्ट किया, 12%, 100 रुपी शेयर, नॉमिनल वैल्यू इज रुपी 100 एट 125, मार्केट वैल्यू इज रुपी 125. तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स बोला है उन्होंने सेकंड पार्ट में. नंबर ऑफ रुपी 125 शेयर्स परचेज्ड सर 10,000 अपॉन 125. अपॉन 125, 80. यस सर. Number of shares are 80. Change in annual income. Yeah, now the annual income becomes
number of shares into rate of dividend into 100. nominal value. ₹96। पहले इनकम क्या था? 500 था, अब 960। 960 Annual income increased by 960 minus 500, that is 460 rupees। आगे समझ? Yes, sir. चलो इतना ही बहुत है आज के लिए। 10 समझी हुए है ना? कल करेंगे बाकी। ओके यस सर। सर ओके चलो शेयर्स के बाद आप क्या करवाएंगे? शेयर्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ठीक है। एक चैप्टर तो हमने कर लिया था, दूसरा करवाना है। दूसरे में तो टेबल वाले में तो कुछ है नहीं, तीसरा ही करेंगे। पहले तो टेबल वाला तो वैसे ही हो जाएगा 15 मिनट में। सर हाइट एंड डिस्टेंस वाला। हाँ सर इनइक्वालिटीज करा देना। सारी इनक्वालिटीज कहाँ पे है? 9th में है वो तो। अच्छा इनक्वालिटीज इन लीनियर इक्वेशन, इन हाँ इक्वेशन, इनक्वालिटी नहीं, इन इक्वेशंस सर एक ही होगा। वही करेंगे, कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशंस, ओ अच्छा लीनियर इन इक्वेशंस, इन अच्छा अच्छा अच्छा, इक्वेशन। हाँ सॉरी सॉरी, वो वो काइंड ऑफ इनक्वालिटी पता नहीं इजी, कहाँ से बोल काइंड रहा है ऑफ। रोहिन। मैं इनक्वालिटी तो 9th में था। यस सर। 9th की ज्यादा याद आ रही है? नहीं सर। नहीं। चलो मिलते हैं कल बच्चे। ओके सर थैंक यू बाय। सर। ओके थैंक बेटा, यू सर, बाय सर, गुड बाय नाइट। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट।